AMP is a non-profit organization with an on-ground presence in more than 140 active chapters spread कहाँ जाना तेरे across को? 26 states in 20 countries with almost 6,000 active members. AMP works in mainly three domains: education, employment, and empowerment. AMP has many achievements to its credit under its main flagship projects and keeps adding new ones as the need arises. Employment Assistance Cell, or EAC, launched in 2014, conducts job fairs and job drives, and it also conducts employability training programs in colleges. Under STP, that is Skill Training Program, company tie-ups are done and candidate mobilization and skill development courses are undertaken again by EAC. So far, AMP has conducted more than 40 job fairs and around 250 job drives, bringing job seekers and corporates together and facilitating the placement of more than 15,000 needy candidates. Talking about the School Development Program, or SDP, has sessions for all stakeholders in the education field. Some digital initiatives of AMP are empowerjobs.com. It is an online portal started in October 2020, which endeavors to connect the right talent to the right opportunity. I don't need to introduce indiazakat.com because all of you are doing internship there. So by the time you must have very well known what is indiazakat.com. And some other initiatives like National Talent Search exam launched in 2020. The India Mentors it is an online mentoring platform that is free and open to all, which envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness. Similarly, Champion app is designed by AMP, on which you can get regular updates of all the AMP programs, that is all the flagship projects. Along with that, several scholarship programs of the government and other NGOs are also being displayed, and it is shared on that application so that all of you can get all these information or at just a single click. And the internship program, again, you all are well aware of this. Talking about the reach of AMP, it is also present in the Middle East with chapters in Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, and UAE, and active chapters are active volunteers are present in Singapore, Malaysia, South Africa, Oman, Bahrain, UK, and USA. And as you all must be knowing, your mentor and Syed Furqan sir, he's also from Saudi Arabia and a very active member of AMP as well as indiazakat.com. And there are several other projects under the flag of indiazakat.com itself, that is Adopt an Orphan campaign, Zakat conference, Feed the Poor campaign. These all are very much explained in your internship itself. So moving forward, I have already talked about the on-ground presence of AMP. Last thing which I would like to add is that more than anything else, it is the rope of Islam that the members of AMP hold on to while treading the strenuous path of empowerment of the Indian Muslim community in particular and the society as a whole in general, that has been responsible for the phenomenal growth that AMP has achieved in just over a decade. Now I would request Syed Furqan Ahmed sir to kindly introduce indiazakat.com's internship program very briefly to our trainer for today, Mr. Mohammad Zamir Hussain sir. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Asha ma'am, for introducing AMP. And I just wanted to take this opportunity to discuss about the internship program which we are conducting for our interns from across India. MashaAllah, we have amazing set of interns here
who is doing amazing work. This is the 4th batch by now. We have concluded 3 batches already. And this 4th batch has been started since 2 weeks. That is from 1st March, we initiated this. And this has been a very successful internship program. We have seen amazing interns who are, these students are not just someone who is here for learning, but they are also here to give something, give their service for the community, mashallah. The awareness that our interns hold, the kind of responsibility, the kind of there is a lot of enthusiasm in these interns, and they really are doing a lot of wonderful tasks which we are assigning to them. And apart from their regular work and apart from their college studies and everything, they are taking out time for this internship program, and they are doing amazing job. This internship program is basically, we have a vision of making these students as to give something for these students and take from something from those students for the community, for the sake of community. The first thing is we try our best to provide them with the mentors, and alhamdulillah, every 10 interns has a dedicated mentor for them, and who these mentors will train them accordingly, and they get all the tasks, whatever issues they have, not just related to the India Zakat task itself, but if they have any career related issues as well, the mentors and all our mentors are ready to support these students. We strive ourselves to provide the best quality interns, and because these are the future of our community. These students are someone who are really future of our community. That is the reason we strive to give them the best of the best suggestions, whatever we can from our side. Apart from that, we are here to support them with the task which make them grow in their personal life. Like if I just give an example of presenting the leadership session today itself, I'm sure we are really excited to hear from Muhammad Zamiruddin Sahab to get more enlightened about the leadership. But the kind of task they have, like they can take India Zakat as an ambassador among their peers, among their seniors, and that's how they lead it, and they take the training sessions. They do a lot of awareness sessions about it, and there are so many other tasks similar to this. So this is a basic about this internship program. This is going to be a 2 months internship program, and luckily these interns are going to have this in the Ramadan, where a lot of zakat, our community takes out a lot of zakat, and they can gain a lot of ajr as well. That's it about this internship program. Over to you, Aisha ma'am. Thank you so much, sir. I'm really very happy, and I pray that Allah Ta'ala give sawab and ajr to all of the team of India Zakat who are striving really hard, and the way you all are working here, it is really very much appreciable. So without further delay, I'll just introduce our speaker for today, Mr. Muhammad Zamir Hussain, sir. He's a certified trainer, NLP practitioner, career analyst, consultant, award assessor, and facilitator who focuses on helping people find fulfillment in what they do and follow a career path that would make their lives astonishingly productive. He's a versatile international resource with over 17 years of experience in training and development and overall HR. He has worked extensively on ISO standards, and as an award assessor, he has assessed awards like Dubai Quality Award also. So without delay, I would request Mr. Muhammad Zamir Hussain, sir, my mentor and the trainer for today, to start the session on Get Trained for a Leadership Role. Over to you, Zamir, sir. Jazakallah khair, Aisha ma'am, my wonderful sister from Lucknow, and I was fortunate enough that we met recently thanks to AMP again, and I'm really happy to connect with Brother Furqan.
mashallah, sitting here in India, I heard a lot about you, and inshallah, one or the other day, inshallah, I would love to meet you also in person sometime. So to my wonderful audience there, assalamu alaikum and good evening. I know you are replying there. I can't hear everyone. Okay, so let me quickly start the subject, because it's already been some time that we are here, and everybody must be waiting to hear about this beautiful topic, leadership. Leadership happens to be one of my favorite topics to train, and I believe it's one of the very vital thing that we all must know. Okay, एक organization में जहाँ पे I'm a bit confused. Shall I continue in English much or English and Hindi mix would be good? आप लोग chat box में type कर सकते हैं. Which one would be good? English or English Hindi? Zamir bhai, both will do. Sorry? Both will do. Both will do. Okay, mashallah, that would be nice. Okay, तो जरा अपनी मादरी जुबान में बात करें तो जरा एक अलग खुशी होती. बेशक. Okay, so guys, I'll try to balance between both English and Hindi, Urdu. Okay, and let's start with the subject now. Okay, my first thing I would like to start is with a question to you, that who is your favorite leader? आप जिस किसी को भी अपना लीडर या लीडर समझते हैं, जो कि जिंदा है या अल्लाह को प्यारे हो गए, whatsoever, but who is your favorite leader? Best leader. Type in the chat box. Yeah, you can answer. You can answer. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, very good. Anybody else? No doubt for most of us. Yeah, I think I'm asking a wrong question, or this is the wrong forum. Because no doubt, obviously, answer would come is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, but why? Why do we consider Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okay, another answer has come here, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Okay, but why do we consider whoever we are considering as to hero, as our leader? But why? Right? This is a good question to ask ourselves. ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछना चाहिए. जी, एज इन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एज इन बेस्ट लीडर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने हर चीज प्रैक्टिकली करके दिखाई. अगर वो चाहते हैं तो क्या कुछ उनके साथ में आसमान से नहीं उतर सकता था, लेकिन उन्होंने हर चीज प्रैक्टिकली एज इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमको करके दिखाई है हर सिचुएशन में. Very good. I do appreciate Ibrahim Sheikh. Thank you for your answer. Jazakumullah khair. No doubt this is our characteristics. हम एक जनरल पर्सपेक्टिव हमारे पास है. But now ये पूरी सीरत क्या हम पूरा फॉलो कर सकते हैं क्या? Can we replicate the whole thing? Okay, most of us wouldn't do that. Okay, but now एक फैक्ट से आप लोगों को आगे चलता हूँ. Okay, that is, if any organization, एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल माना जाए और उसके फैक्टर्स गिने जाए कि किस फैक्टर से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है, ओके, तो काफी सारे एलिमेंट्स इसमें काउंट किए जाएंगे. छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे. सब में बड़ा परसेंटेज आता है वहां पे लीडर को, जिसका परसेंटेज होता है 15%. तो ये माना जाता है कि लीडरशिप इज 15% ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 15% सक्सेस और वन फैक्टर विच इज सो लार्ज. बाकी सारे फैक्टर्स बहुत स्मॉल होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे. ओके, सो लीडरशिप इज सच ह्यूज, इतना बड़ा है, और उसके लिए बहुत कुछ चाहिए. नाउ इफ यू क्विकली टॉक अबाउट लीडरशिप, definitely the second words or many other words which will be coming to our mind would be teamwork, motivation, okay, competencies, उनके skills, responsibility, right? ये सभी चीजें हमारे दिमाग में आ जाएंगी. But let's discuss in length. आज का ये सेशन हमारा वही है ना कि are you ready to become a leader? Okay, तो इंशाल्लाह ताला मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक लीडरशिप के दरवाजे तक ले जाके छोड़ूं. इंशाल्लाह वहां पे आप अपने आप को कैसा लीडर बनाएंगे, ये आगे अल्लाह की मदद से आप इंशाल्लाह बन जाएंगे. ओके, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड ए मैनेजर? ओके, बहुत कॉमन सवाल होगा, कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा. ओके, बट रादर देन वॉइस, प्लीज कैन आई रिक्वेस्ट प्लीज टू टाइप इन द चैट बॉक्स सो दैट अदर्स वुड आल्सो गेट टू आंसर. उनको भी थोड़ा सोचने का टाइम मिलेगा, थोड़ा आंसर करने का टाइम मिलेगा. एंड गाइस, प्लीज मेक इट इंटरैक्टिव सेशन. मैं ये वन वे कमेंट्री नहीं रखना चाहता हूँ. नो, आई एम नॉट हियर फॉर दैट. इनफैक्ट आप लोग मेरे सामने नहीं है, वरना मेरे से ज्यादा मैं आप लोगों से बात करवाता. सैयद फरहान कहते हैं कि लीडर वन हु लीड फ्रॉम द फ्रंट. वेरी गुड.
Leader will first think on his team first. Okay, very good. Ibrahim साहब bang on. फरहान साहब ने भी बड़ा सही जवाब दिया है कि leader is somebody who is at the front always. Very good. और क्या हो सकता है? What else is the difference? यहाँ पे मैनेजर क्या होता है, लीडर क्या होता है? मैं ये डिफरेंस, ये लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएंगे, हमारी नॉलेज, हमारे वर्क करने का तरीका, हमारे कई सारे स्किल्स के वजह से हमको जो पोजीशन में जो बढ़ोतरी मिलेगी, वहां पे हम लोग मैनेजर कहलाए जाएंगे, वहां पे हम लोग लीडर नहीं कहलाए जाएंगे. ओके, वहां पे हमको लीडर नहीं बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? मैनेजर बोला जाएगा. Now here I am trying to draw the line difference between what is a leader, what is a manager. Okay, तो पहला difference. Okay, for the want of time, sorry, I am moving forward. Zahir ने एक आंसर दिया है कि leader thinks about his team, but manager thinks about his position. Very good Zahir. सिद्दीकी साहब सही बात कर दिया आपने. फरहान कहते हैं कि manager is one who follows some order, work accordingly. Yes sir, उसको काम का order बड़ा important रहता है. बहुत सही फरमाया आपने. Okay, now for the want of time, let's see what does the slide says. Leader never leave their people behind. Yes, Amish Murtaza sahab, very right. Okay, now let me read out the slide here और आप सभी इसको पढ़ सकते हैं. पहला डिफरेंस हम जो देखेंगे between a leader and a manager is leader drives like coaches. Leader का coaching का तरीका होता है. ओके, वो सवाल पूछता है, सवाल पूछ के लोगों को आगे लेके जाता है. और मैनेजर का तरीका ये होता है कि वो ड्राइव करता है. तुम एम्प्लॉय हो, यू आर पेड फॉर दिस, यू मस्ट डू दिस. ओके, उनका वो तरीका होता है. बट वेयरएज मैनेजर का, फिर वापस मैनेजर का पहला चीज देखें तो मैनेजर इज डिपेंड्स अपॉन अथॉरिटी. वो उसको हक दिया गया है कंपनी की तरफ से, वो हक जताता है बस. ओके, बट लीडर इज फ्रॉम गुडविल. इस बात को मैं तब्दील करके दूसरे अल्फाज में ये भी बोल सकता हूं कि मैनेजर बोलेगा आई एम योर मैनेजर, बट लीडर बोलेगा, लीडर नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे ही इज माई लीडर, शी इज माई लीडर, आई फॉलो दैट पर्सन. तो लीडर क्या है? लोग मानना चाहिए कि आप लीडर है. मैनेजर में ऐसा नहीं होता है ना. मैनेजर खुद बोलता है अरे मैं मैनेजर हूं भाई, मुझे इस डेजिग्नेशन पे बिठा गया, मुझे चेयर पे बिठा गया, आई एम योर मैनेजर. बट आई कैन नॉट टेल टू एनीबडी आई एम योर लीडर. लीडर के लिए फॉलोअर बोलेंगे कि भाई ही इज माई लीडर, शी इज माई लीडर. तो ये इंपॉर्टेंस आपको जहन में रखना बहुत जरूरी है. Then only you may become a leader. Otherwise, you are a force manager. Okay. Next one, manager डरा के काम निकालता है. Okay. Leader enthusiasm से, जोश दिला के काम निकालता है, या साथ में काम करता है इनफैक्ट. Okay. मैनेजर बोलता है आई, लीडर बोलता है वी, हम. जैसा आप लोग अभी मेजर डिफरेंस बता रहे थे ना, वही चीज दोहरा रहा हूं. ओके, मैनेजर प्लेसेस ब्लेम ऑन फॉर ब्रेकडाउन. ओके, लोगों को ब्लेम करता है. जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, मेरा वो टीम मेंबर काम नहीं किया, मेरा टीम मेंबर ऐसा, मेरा वो ऐसा, मेरा ये ऐसा. बट लीडर क्या करता है? ही फिक्सेस द ब्रेकडाउन. वो टीम के लिए वो स्मूथ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. ओके, मैनेजर नोज हाउ इट इज डन, बट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. लीडर क्या करता है? शोज हाउ इट इज टू बी डन. वो करके बताता है, सिर्फ बोलता नहीं है. मैनेजर डज टॉक द टॉक, बट लीडर वॉक्स द टॉक. वो जाके करके बताता है. ओके, मैनेजर यूजेस द पीपल, लीडर डेवलप्स द पीपल. ओके, मैनेजर टेक्स द क्रेडिट, बट वेयरएज लीडर वो हर आदमी को उसके हक का, उसका रिकॉग्नाइजेशन, उसका पैसा, उसका नाम, उसकी शोहरत उसको पहुंचाता है. ओके, दैट इज व्हाट अ लीडर इज. राइट. लीडर, मैनेजर कमांड करता है, लीडर पूछता है कि ये करोगे क्या, ये कैसा करोगे, वो कैसा करोगे. Right? And last but not the least, the manager says, go, do it. But leader क्या बोलता है? Yalla, let's go. Right? So here एक ही स्लाइड में एक बड़ा सा डिफरेंस मिल गया हमको कि एक मैनेजर क्या होता है, लीडर क्या होता है. ये डिफरेंस हमको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ओवर ए पीरियड हम लोग जाने अनजाने में मैनेजर बड़े बड़े मजे से बन जाते हैं, बड़े आराम से बन जाते हैं. बट द चैलेंज इज टू बिकम अ लीडर. Because as I told you, the first thing and the foremost thing about a leader is I cannot tell I am a leader. My team, my followers should tell that I am their leader. ये difference create करने लोगों को सदियां लग जाते हैं, लोगों को decades लग जाते हैं. Right? So for that reason, friends, it is very important that you draw the line. आपको ये line पता होनी चाहिए कि एक manager क्या होता है, एक leader क्या होता है. Okay? And then inshallah हमको मदद मिलेगी and we'll be able to create a leader among ourselves. And this is what our ummah
our community currently needs. We badly need leaders. Okay. So I think some of them are trying to relate to their existing thing, whatever is happening. Okay. Now let's move on. Leadership is not only about this. There are so many other things. So inshallah, let's see in the rest of the time, we'll try to cover some more interesting topics about leadership. Okay. Now एक question, another question. आज बहुत सारे सवाल पूछ रहा हूँ ना भाई, सवाल पूछूंगा, सवाल नहीं पूछूंगा तो आप लोग फिर क्या करोगे? अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक करना शुरू कर दोगे लोगों के. Okay. So even before you do that, let me ask you another question. Is leadership qualities, leadership skills, leadership के जो like you know जो भी features होते हैं, ये inherent लोगों को पैदाइशी मिलते हैं या इसको acquire करना होता है, इसको like you know हासिल करना होता है? So what do you think? Either inherent or acquired? Quickly type in the chat box. Acquired, 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 mostly acquired. Okay. बड़े नापे तुले words देते हैं. हाँ? Acquired in a period of time. देख रहे हैं? Acquired mostly. देख रहे हैं? Okay. Very good. Very, very balanced words. Okay. Even inherited needs to be polished. Yes, Farhan Saab, bang on. You are right there. Right, friends? No doubt, no doubt. Leadership qualities are not inherent. Sometimes ऐसे भी होता है कि like you know inherent होने के बाद भी वो like you know suppress हो जाते हैं, जैसा कि फरहान भाई ने बताया कि they has to be polished. Okay. Now very important is acquiring. अगर ये सभी लोगों का आपका आंसर है, so now next question we should ask ourselves is what are we doing to acquire these leadership skills? Okay. 20 plus तो सबका यहाँ पे age होगा, right? Maybe some below 20 also. But if we know, are we really consciously working to acquire these skills? Okay. And very important is there are some people who have become leader not because of like you know acquiring. Situation has made them sometimes. Situation has sometimes made that. Right? बाज लोग situation के हिसाब से भी leader बन जाते हैं. उनको बनना पड़ता है. उनके पास कोई choice नहीं होता है. Okay. But ये situational leadership एक ही तरीके की leadership में काम आएगी या एक ही तरीके की leadership होगी. जो लोग इनहेरेंट होते हैं वो भी इनहेरेंट उनके अंदर ज्यादा दिख के नहीं आती है. ओके. उनको जाया करना, उनको लेकिन जाहिर करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है वो. राइट. बट वेरी इंपॉर्टेंट है जो लोग एक्वायर करके इसको हासिल करते हैं, दे नो उसको ऑप्टिमम तरीके से कैसे यूज करना चाहिए. ओके. सो सामिया सेज पार्टिसिपेशन एंड इंटरैक्टिंग. नो डाउट. ओके. दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी वाइटल वे हाउ डू वी एक्वायर द लीडरशिप स्किल्स. नाउ अनदर क्वेश्चन. लीडरशिप स्किल्स ये एक आर्ट, एक फन, ओके, एक कला है या एक हथियार? ओके. व्हाट इट इज अकॉर्डिंग टू यू? लीडरशिप इज एन आर्ट और एन वेपन? क्या है भाई? देयर इज अ रीजन व्हाई बिहाइंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. ओके. मेनी ऑफ देम आर टेलिंग आर्ट आर्ट आर्ट. शुरू में शुरू हुआ, बाद में लोगों ने उसको बोलना शुरू कर दिया बोथ. फिर यहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं. वेरी वेरी स्मार्ट ऑडियंस आई हैव टुडे. आई मस्ट एडमिट दैट. ओके. ओके. It is an art to manage things smoothly. Okay, very good. So right friends, number one, ये आर्ट है. अगर ये आर्ट है तो आप लोग पहली चीज ये जानिए कि लीडरशिप कोई किताब को पढ़ने से, कोई प्रेजेंटेशन को पढ़ने से, कोई यूट्यूब के वीडियो देखने से, इससे आपकी लीडरशिप नहीं बनेगी. ये एक आर्ट है. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा. यू हैव टू डू इट. तभी जाके ये फन, ये आर्ट, ये कला आपको आएगी. राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. पहली चीज ये आर्ट है. दूसरी चीज ये बोलता हूं कि यस, इट इज अ वेपन ऑल्सो. इट इज अ वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्टिविज्म. ओके. नॉट डिस्ट्रक्शन. ओके. ये मास कंस्ट्रक्शन का वेपन बन सकता है या है एक्चुअली. तारीख गवाह है कि तारीख ने कई सारे लीडर्स दिए हैं एंड दे हैव डन सो मेनी लाइक यू नो ब्यूटीफुल वर्क्स. ओके. उसके वजह से आज ह्यूमन बीइंग वहां है जहां पे आज वो है. राइट. बट ये वेपन को जब ये आर्ट आपके पास आ जाए तो आप इसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करना, आप इसको सही तरीके से यूज करना, ये बहुत जरूरी है. एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय के सामने ठहर के ये नहीं बोल सकता भाई 31 दिसंबर है, आज रात में तुम ओवर टाइम कर रहे हो. ओके. वो बोलेगा, मना कर देगा, नहीं करेगा भाई, पैसे मैं तुमको ओवर टाइम दूंगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए ओवर टाइम. ही विल गो. A manager cannot make the person to work at that hour. कल ईद है, आज शाम में आप बंदे को काम कराओगे चांद रात को? मैनेजर करा सकता है? ओके. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. Unless until there is some motivation which is bigger than the like you know Eid happiness of Eid, right? Otherwise he will not work. So now a leader will come into picture here.
लीडर वो करवा सकता है जो मैनेजर नहीं कर सकता है। ओके, तो लीडर के लिए 2-3 वर्ड जो जानना बहुत जरूरी है, वो है मोटिवेशन 1, नंबर 2 इन्फ्लुएंस, नंबर 3 परसुएड। ओके, अगर ये सब करना जानता है तो एक अच्छा लीडर बन सकता है। दैट इज व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इज इट एन आर्ट और अ वेपन? ओके, सो बिफोर आई मूव फर्दर, ओके, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, आर वी गोइंग राइट? शैल वी प्रोसीड और नो? अच्छा लग रहा है आपको? सही बात कर रहा हूं, मेरी बात आप एग्री कर रहे हैं तो प्लीज टाइप यस, देन वील मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। यस, एग्रीड, एग्रीड, यस, yes, yes, no doubt, no doubt. Thank you, jazakumullah khairam. Okay, now let's move forward, let's talk more about leadership now. Okay, another question quick, ये लास्ट रहेगा यहाँ पे, इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद पूछूंगा क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ये कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर? राइट, अभी तो बारिश होनी चाहिए भाई ऑप्शंस की। लीडर विल मेक यू फील स्पेशल, नो डाउट इब्राहिम, 101% एग्री। यस, व्हाट आर द क्वालिटीज? एफिशिएंट, ओके, देन लीडर के क्वालिटीज क्या होने चाहिए? अगेन वेरी माइंड यू, अगर आपको लीडरशिप के क्वालिटीज पता नहीं होंगे, आप उसको डेवलप नहीं करेंगे, आप उसको डेवलप नहीं करेंगे तो आप लीडर नहीं बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपकी लीडरशिप स्किल्स को जानना बहुत जरूरी है। एफिशिएंट, स्किलफुल, विजनरी। फरहान साहब थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थोड़ा दूसरों को मौका दे देते हैं। इमरान says turn, okay, I don't know why. Samia says one who keeps both pros and cons of a plan, positive approach, immediate decision taking is what I allow. Zahir says productive, skillful, missionary. Oh, visionary के बाद missionary भी आ गया है, very good. A leader understands the strength and weakness of their people and help them in overcoming hurdles. Very good, very good. माशाल्लाह, माशाल्लाह, I must say really, फरहान साहब ने जो तारीफ की शुरू में, फुरखान साहब ने जो तारीफ की शुरू में, I'm like seeing it, mashallah, we have a very intelligent crowd. Okay, so guys, sorry, I cannot take it more further. Let me share it from the slide now. Okay, so traits of a leader. First of all, to start with traits of a leader, अगर हम लोग बात करेंगे, okay, leader must have a vision. Okay, अभी किसी ने बताया vision. Now this vision is very important. And vision के बारे में ये एक लाइन बोलता चलता हूं, जब तक आप कोई चीज को विजुअलाइज नहीं करते, आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कि जब तक आप किसी चीज को, किसी एक इवेंट को, किसी एक सक्सेस को, आप जब तक आप विजुअलाइज नहीं करते ना, आपके एफर्ट्स, आपके एक्शन उस तरफ डायरेक्ट नहीं होते हैं। ओके, इसी पॉइंट को रॉबिन शर्मा ने बुक लिखकर द यूनिवर्स करके बहुत बड़ी बड़ी तारीफें हासिल की हैं। बट आई एम टेलिंग यू, इस्लाम ने हमको ये बात बहुत पहले सिखा चुकी है। ओके, कि पहले हमको विजन होना चाहिए। अगर आप जाते हैं जॉब के इंटरव्यू के लिए, तो पहले अपने आप को इमेजिन कर लें कि आप जॉब का ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हुए कैसे दिख रहे हैं। अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो इमेजिन कर लीजिए, आप क्रिकेट मैच जीतने के बाद में लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको कप मिल रहा है, तो आप वो कैसे दिख रहे हैं। ओके, सो इमेजिन दैट सिचुएशन। ये जब विजन जब आपके दिमाग में जब आता है, जब आपके सामने आ जाता है, देन यू विल प्रोसीड फर्दर इन दैट, then your actions will be directed towards that. So my dear friends, it is very important that you a leader must be a visionary leader. उसको वो आगे की देखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। वो आज में टीम को लीड नहीं करना चाहिए, वो आगे का सोच कर टीम को बिल्ड करना चाहिए, टीम से काम लेना चाहिए, टीम को तक ड्राइव करना चाहिए। बिकॉज आम आदमी वो है या फॉलोअर वो है जो आज में जीता है, बट लीडर वो है जो आगे की सोचता है। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द लीडर मस्ट बी अ विजनरी पर्सन। The second point, second trait, leader must be able to travel the unexplored path. कई बार कई लीडर्स को ये चैलेंज आता है कि उनको इससे पहले कोई नहीं किया वो काम करना होता है। एंड माइंड यू, यहाँ पे कई सारे लीडर्स फेल हो जाते हैं, यहाँ पे कई सारे लीडर्स फेल हो जाते हैं। वो नए रास्ते पे जाना नहीं चाहते हैं, दे आर हैप्पी इन देयर कंफर्ट जोन। ओके, और वो अपने आप को वहां तक लिमिट कर लेते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी बिग डैमेजिंग एटीट्यूड, जहाँ पे अगर आप एक वक्त तक लीडर हैं और आप वहां पे एक नए रास्ते पे जाना नहीं चाहते, नया रास्ता बनाना नहीं चाहते लोगों के लिए, आप अपनी लीडरशिप को भी रोक रहे हो और अपनी टीम की तरक्की को भी रोक रहे हो। ओके, सो बी रेडी टू एक्सप्लोर द न्यू पाथ्स। मस्ट नो हाउ टू मैनेज सक्सेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मस्ट नो हाउ टू मैनेज फेलियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लीडर का। एक नॉर्मल बंदा जो होता है ना टीम का, जब उसको पहली बार कोई सक्सेस मिलती है ना, वो उसके दिमाग पे चढ़ जाती है।
एटीट्यूड आ जाता है, साथ में आसमान पे आ जाते हैं। ओके, दिस इज नॉट गुड फॉर ए लीडर। लीडर को पता होना चाहिए कि ये सक्सेस से कितना खुश होना चाहिए, कितना रीजनेबल खुश होना चाहिए। खुश होना जरूरी है, टीम को अप्रिशिएट करना जरूरी है, ओके, बट नॉट गोइंग बियॉन्ड कि एक सक्सेस को पकड़ के 4 बार फेलियर को उसके अंदर दबाते रहे, फेलियर को, कि भाई मैं जब सक्सेस था। नो, यू हैव टू नो हाउ टू मैनेज योर सक्सेस। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ टू मैनेज योर फेलियर। जब आप फेल हो जाते हैं, वो फेलियर से जब तक आप सबक नहीं सीखते हैं, आप आगे ना बढ़े। एज ए लीडर आपको उस फेलियर का रीजन जानना है, उससे आपको सबक सीखना है कि दोबारा ये फेलियर रिपीट ना हो, और अगर आप वो फेलियर से सबक सीख लेते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर आपने सबक नहीं सीखा, ये इम्तिहान दोहराता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ओके, तो ये फखर, जो लोगों के ऊपर फखर चढ़ जाता है ना सक्सेस का, वो नहीं चढ़ना चाहिए। यू आर राइट वसीम भाई। ओके, नेक्स्ट वन, लीडर मस्ट हैव द करेज टू टेक डिसीजन। जैसा थोड़ी देर पहले आई थिंक किसी ने बताया यहाँ पे, सानिया, ओके, कि वो लोगों को डिसीजन लेने की कैपेसिटी चाहिए। कई लोग लीडर नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनके पास वो लीडरशिप के अंदर डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी नहीं होती, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप जितना हो सके इंफॉर्मेशन से पहले वाकिफ रहें। कीप योर माइंड होराइजन, योर नॉलेज बेस को ज्यादा बड़ा रखना चाहिए, और एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ रिस्क अगर आप ये ले सकते हैं, एक करेज जो आता है उसके अंदर, ओके, वहां पे आप लीडर बनना शुरू होते हैं। एक क्विक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्विक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने अलर्ट एंड एक्टिव है। ओके, जंगल में सब में बड़ा जानवर कौन सा है? जंगल में सब में बड़ा जानवर कौन सा है? बड़ा, बिग। लॉयन नहीं है भाई, एलिफेंट। हाँ, एलिफेंट बड़ा है, चलो मान लेते हैं। ये क्या, ये अपना हिपोपोटामस? नहीं भाई, हिपोपोटामस उतना बड़ा भी नहीं है। ओके, सब में शातिर कौन सा है भाई? जंगल में पूछा है, वेल पानी में रहती है। हाँ, फॉक्स है ना। हाँ, ओके, राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, अभी इतने सब के बीच में अभी और पूछे जाऊंगा ना, आप और दूसरे जानवर के नाम बताओगे, मगर हम किंग ऑफ जंगल किसे कहते हैं? किंग ऑफ जंगल किसे कहते हैं? लॉयन को, राइट? सभी लोग बोल रहे हैं लॉयन। नो डाउट भाई, यू ऑल आर राइट, बट लॉयन को क्यों बोलते हैं? लॉयन के पास वो क्या चीज है जो दूसरे जानवर के पास नहीं है? इवन दो वो बड़े होंगे, वो टॉल होंगे, वो स्मार्ट होंगे, वो शार्प होंगे, वो ज्यादा विजडम वाले होंगे। ओके, करेज। That's it. Amish, you are right there. Ibrahim, you are right there. Imran साहब, you are also right there. Courage. एक लीडर के पास करेज होना चाहिए। ओके, वो हौसला, वो कॉन्फिडेंस के टीम को कैसे लीड करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन, नोबिलिटी इन मैनेजमेंट। कितना नोबल हो के आप टीम को मैनेज कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द बेस्ट ऑफ द टू आई कैन नेम इज वेरी क्विकली इज नेल्सन मंडेला एंड महात्मा गांधी। ओके, वेरी नोबल एंड नो डाउट अबव ऑल ऑफ देम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, एंड लीडरशिप के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट इज आई मींस टीम। जब वो आई बोलता है ना, वो अपनी पूरी टीम को शामिल करके बोलता है। आपने कई बार टीम लीडर और या टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइज का नाम सुना होगा, आई वर्सेस वी करके। ओके, आई डोंट एग्री टू दिस टाइटल, बिकॉज जब लीडर जब आई बोलता है ना, उसका मतलब उसकी पूरी टीम होता है, इट इज नॉट जस्ट अलोन हिम। ओके, बट जब मैनेजर जब आई बोलता है ना, हाँ, वो अकेला ही है। ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट हिम अलोन। ओके, सो फॉर दैट रीजन माय डियर फ्रेंड्स, एक लीडर को यह जानना बहुत जरूरी है कि ओके, वो आई मींस ही इज अ टीम। लीडर मस्ट बी अप्रोचेबल, लीडर शुड बी इजीली अप्रोचेबल, लोग उसको आके इजीली बात करना चाहिए। एंड लीडर मस्ट बी क्रिएटिव। क्रिएटिव हियर मतलब ड्राइंग, आर्ट्स, क्राफ्ट्स करना नहीं। लीडर का क्रिएटिव होना इसलिए जरूरी है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करे। जो चीज दिख रही है उससे भी सोचे, जो चीज नहीं दिख रही है वहां पे भी जाके सोचे। दैट मेक्स यू अ लीडर। ओके, सो आपका क्रिएटिव दिमाग बहुत जरूरी है, आपका सिचुएशन के आगे जाके सोचना बहुत जरूरी होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग इन प्रोसेस। यस, लीडरशिप पूरे लाइक जोश में लोगों से काम करवा लेता है, मगर उसको प्रोसेस भी जानना जरूरी है। जैसा कि मैनेजर प्रोसेस जानता है, लीडर प्रोसेस भी जानता है, उसके बाद आगे बढ़ता है, उसके बाद आगे जाके लीडर बनता है। ओके, सो इनफैक्ट लीडर इज मैनेजर प्लस जाके लीडर बन जाता है। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगिविंग क्वालिटी। अल्लाह के नाम में वही शुरू होता है ना पहले, अर रहमान, अर रहीम, राइट? माफ करना आना चाहिए इंसान को।
तब जाके आप अच्छे लीडर बनते हो। अगर लीडर ये मान के बैठ ले, इसने मेरे साथ वहां ऐसे किया, मैं इसको नहीं, इसको मैं सिखा के रहूंगा, इसको मैं बदला लूंगा, आई विल शो हिम, ओके, अगर ये एटीट्यूड रहेगा, दिस गाय विल नेवर बिकम अ लीडर। ओके, so with this I'll stop this list. This is a very big exhaustive list, but there are another approach to understand leadership more, so inshallah I'll try to move there. Okay, is my voice audible? Somebody just now told me I am not audible. Is my voice audible? If you can quickly type in the chat box, please. Audible. Thank you. Okay, now next big question. ये सब तो सही है भाई, लंबी लिस्ट है लीडरशिप के ट्रेड्स की, लीडरशिप की क्वालिटीज की, बट हम डेवलप कैसे करें? ओके, ज्ञान तो बहुत बांट लिया, बट अभी करें कैसे? राइट, सो नाउ टू डू टुडे आई हैव टेकन हेल्प ऑफ वन ग्रेट पर्सनालिटी अमंग अस. ओके, ही इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट लेट्स टेक हिज हेल्प. ही इज नन अदर देन आवर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बैरक ओबामा. ओके, पूरा नाम याद है तो सुना देता हूं, अगर याद नहीं है तो बैरक हुसैन ओबामा. ओके, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा इनका तरीका देखते हैं लीडरशिप का, या इनसे हमको कुछ लीडरशिप के लेसन्स मिलते हैं, या ये हमको ये हेल्प करेंगे जानने में कि हाउ यू कैन ऑल्सो बिकम अ लीडर. ओके, हाउ यू कैन ऑल्सो बिकम अ लीडर. सो कपल ऑफ सजेशंस फ्रॉम हिम. नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे. अगर आप मोबाइल वगैरह देख रहे हैं तो जरा बाजू रख दें उसको, और इस बात पे मेरे थोड़ा सा ध्यान दे. पहला क्वालिटी जो लीडर बनने के लिए आपको पहला कदम जो उठाना है ना, फील गुड अबाउट योरसेल्फ. अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए. कई लोगों ने अपने आप को एक फ्रेम में फिक्स कर लिया है. मैं फलाना शहर से हूं, मैं ऐसी फैमिली से हूं, मुझे ऐसे कॉलेज में पढ़ने को मिला, मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे भाई बहन ऐसे हैं, ओके, मेरे किस्मत ने साथ नहीं दिया, मुझे वो नहीं, मुझे ये नहीं, एंड 1000 बातों का रोना रोते रहेंगे. ओके, अगर जब तक आप ये रोना बंद नहीं करेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम बिकमिंग अ लीडर. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टुडे, इनफैक्ट नाउ, अभी आपको ये लेना डिसीजन है कि यू आर गोना थिंक गुड अबाउट योरसेल्फ फ्रॉम नाउ, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट. अल्लाह ताला ने हमको हर किसी को एक अलग अलग क्वालिटीज से बख्शा है, एंड वी मस्ट यूटिलाइज दैट. ओके, वी मस्ट यूटिलाइज दैट. अतीक उम्मती ने बहुत सही बात बोली, नाशुक्री और मायूसी कुफ्र है. बेशक मेरे भाई, बिल्कुल कुफ्र है. हमको अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह को शुक्र करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज अल्लाह ने दिए हैं, एंड वी ऑल हैव दैट एबिलिटीज. वी ऑल हैव, हम सब के अंदर वो एबिलिटी, हम लोग लीडर बन सकते हैं, बट पहले सोचें अपने आप के बारे में. अच्छा, फ्रॉम हियर इट स्टार्ट्स हियर, फिर बाद में बाहर जाएगा. ओके, फिर बाद में बाहर निकलेगा. सेकंड वन, बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर ड्रीम्स. अपने आप के ऊपर भरोसा रखो और अपने ख्वाब के ऊपर, आप जो देखते हो फ्यूचर विजन, यहाँ पे ड्रीम इज विजन, ओके, उसके ऊपर भरोसा रखो. कई सारे लोग आपको डिग्रेड करेंगे, कोई लोग आपको मना करेंगे कुछ करने के लिए. मेरे साथ 1000 बार हुआ है, मैं बोलता हूँ मेरी जिंदगी में, मेरी 43 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ कई बार हुआ है कि कई लोग मुझे डिग्रेड करते हैं. ओके, टू टेल यू द फैक्ट, मैंने एक 59 इयर्स ओल्ड बंदे को लीडरशिप की ट्रेनिंग दी है. 59 इयर्स ओल्ड, जब मैं खुद 40 इयर्स का था. ओके, लीडरशिप की ट्रेनिंग, एक्सक्लूसिवली लीडरशिप. ओके, बहुत ज्यादा लोगों को दी है मैंने. लीडरशिप इज वन ऑफ माई सेकंड और थर्ड टॉप टॉपिक जिसके ऊपर मैंने ट्रेनिंग की है. ओके, बट आई एम टेलिंग यू, पहले हमको अपने आप के ऊपर भरोसा करना चाहिए. यू शुड सी द ड्रीम. मैं जब बीएससी में था तब मैंने ड्रीम देखा था कि मैं ट्रेनर बनूंगा. जब मैं यहाँ पे गुलबर्गा, आई कम फ्रॉम गुलबर्गा, कर्नाटका, इफ मेनी ऑफ यू डोंट नो. जब मैं 2 साल पहले, जब यहाँ पे 1.5 साल पहले, जब मैं यहाँ पे कंपनी स्टार्ट कर रहा था, मेरी एक खुद की कंपनी गुलबर्गा में, लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, बोले ये क्या कर रहा है. जब मैं एमबीए कर रहा था, मेरे ऊपर भी लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे खानदान में ज्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर है, तुम ये क्या एमबीए की नई सीरीज चालू कर रहे हो. ओके, पीपल विल लाफ एट योर ड्रीम, एंड इन फैक्ट आई टेल यू द फैक्ट, जब लोग आपके ख्वाब पर हंसने लगे ना, तो समझना वो ख्वाब अचीव करने लायक है. जब लोग आपके ख्वाब को सुन के चुप बैठ जाए, मुंडी हिलाए ना, वो ख्वाब में दम नहीं है, वो ख्वाब अचीव करने लायक नहीं है. ओके, सो पीपल शुड लाफ एट योर विजन. लोगों को आपके विजन को सुन के उनके रोंगटे खड़ी होना, इंग्लिश में बोलते हैं गूज बम्स आने चाहिए, वैसा आपका ड्रीम होना चाहिए. ओके, एंड बिलीव इन दैट. नेक्स्ट चीज, हमारे बैरक हुसैन ओबामा साहब हमको ये सिखाते हैं कि टेक रिस्क.
यही रिस्क है जो आपको इट विल मेक यू टू कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी. And there is another definition of leadership which says that a leader is a person which can convert a vision into a reality. लीडर के पास वो काबिलियत होती है कि ख्वाब को हकीकत में बदल सके. अगर आप ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं, आप लीडर हो, आप लीडर हैं, आप लीडर थे, आप लीडर रहोगे. अगर आपके पास ये काबिलियत है कि आप ख्वाब को रियलिटी में बदल सके. If you can do that, there is nothing gonna stop you. I'm telling you. There's nothing which can stop you to become a leader. Okay? And leader has a very clear vision, clear mission. दो लोगों ने बता दिया ना, एक ने विजनरी बोल दिया, एक ने मिशनरी बोल दिया, right? So leader will have a clear vision. इसके लिए हमको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है. Do a quick exercise. आपका strength, weakness, opportunity, threat, जो SWOT analysis बोलते हैं, या कोई personality test, ऐसा वैसा कुछ करके पहले अपने आप को जाने, अपने टीम मेंबर्स को जाने आगे आने वाले टाइम में. ओके? एंड आगे के बारे में विजन और मिशन तब आप कर सकते हो. विजन इन सिंपल क्या है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ. मिशन इन सिंपल क्या है, मैं कैसे जाऊंगा, रास्ते में मैं क्या करूंगा, क्या करके मुझे मेरा विजन हासिल होगा. ओके? तो आपको ये जानना है कि आपको जाना कहाँ है और क्या करना है रास्ते में. आज की डेट में हमारे उम्मत में कई सारे लोग मास्टर्स डिग्री पास हो चुके हैं, उनको ये नहीं पता है क्या करना है. मेरे सामने आके बैठते हैं और बोलते हैं कोई भी जॉब चलेगा, कुछ भी सैलरी चलेगी. Right? Now, if you don't have that vision, खुद के लिए, how will you lead a team? Right? टीम को कहां लेके जाओगे जबकि खुद का अपना तुम्हारा विजन नहीं है, तुमको पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है. अगर if you know that, then you are a leader. आपको अपना विजन, अपना मिशन, अपने ग्रुप का विजन, अपने ग्रुप का मिशन, ये आपको चाहिए ही चाहिए. Then only you are heading towards there. Otherwise, no, you are not heading anywhere. You are not heading anywhere. ओके? शेयर योर गोल विथ योर टीम. कई सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो गलती ये करते हैं कि अपना गोल जो है, अपना जो विजन है, लोगों के साथ शेयर नहीं करते. इनफैक्ट यहाँ पे और एक बात आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स की भी कमी होती है. लोग अपना ख्वाब दूसरों को नहीं बता सकते. एक अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं होता है जो कंटिन्यूअस बात कर सकता है. अभी मैं कर रहा हूँ ना कंटिन्यूअस बात. ओके? और एक होता है विजन, और एक होता है बेस्ट कम्युनिकेटर जो अपना ख्वाब सामने वाले को बेच सके, जो अपना ख्वाब सामने वाले को दिखा सके. अगर आपके पास, आपके कम्युनिकेशन में वो ताकत है, तो आप अपना विजन को शेयर करें. लोग खुली आंखों से वो ख्वाब देखना चाहिए जो आपने बंद आंखों से देखा है. देन यू आर अ लीडर, देन यू आर टेकिंग देम इन दैट पाथ. ओके? बी विद योर टीम एंड एम्पावर देम. जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हो भाई, एक एक फोटो यहाँ पे ऐसे ही ऐड नहीं की गई. हाँ, बहुत सारे रिसर्च के बाद ऐड की गई है. ओके? तो क्यों ऐड की गई है? तो देख रहे हो आप बैरक ओबामा साहब कैसे बैठे अपनी टीम के साथ रात देर रात. ओके? तो एक लीडर को चाहिए कि वो अपनी टीम के साथ रहें, टीम के साथ रह के उसको एम्पावर करें, उसको एनर्जी दे के वो आगे जाए, एक एक्स्ट्रा माइल जाके उस गोल को हासिल करें जो ड्रीम आपने उनको दिखाया है. ओके? नेक्स्ट वन, मेक पावरफुल एंड हार्ट मूविंग स्पीचेस. नाउ वेरी चैलेंजिंग पार्ट. नहीं, मेनी ऑफ बहुत लोग यहाँ पे सोचेंगे यार ये मैं नहीं कर सकता. भाई ये चाहिए, ये हम सबको चाहिए. ओके? बट इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास वर्ड्स हैं बट वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, या सही वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते, या सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करते. सो मेकिंग पावरफुल एंड हार्ट मूविंग स्पीचेस. तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहली चीज, इसके लिए इखरा. क्या करना है? इखरा पढ़ना है. जब आप पढ़ते हैं ना, दलाई लामा का कहना है, ओके, दलाई लामा सब लोग जानते होंगे, वो बोलता है कि जब आप बोलते हो ना, आप वही बोलते हो जो आप जानते हो. जब आप सुनते हो ना, हाई चांसेस दैट आपको कोई नई चीज सीखने मिलेगी. तो पहली चीज, लोगों की सुनो, अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग लीडर से मिलो, अलग अलग पर्सनैलिटी से मिलो. एंड लीडर जरूरी नहीं है कि वो रिच हो. प्लीज, रिच इज नॉट ओनली लीडर, देयर आर पुअर लीडर्स ऑल्सो. हाँ, पैसे से लीडरशिप को मत तोलो प्लीज. ओके? मैंने एक रिक्शे वाले से सीखा है. मैं बचपन में स्टैमर करता था, हकलाता था. मुझे एक रिक्शे वाले ने हेल्प किया था कि स्टैमरिंग को मैं कैसे ओवरकम कर सकूं. आई एम टेलिंग यू माई ओन स्टोरी. आज मैं 2000 लोगों के सामने भी आराम से डर के बात करता हूँ. ओके? आई कंसिडर दैट रिक्शे वाला, जिसका मुझे आज फेस भी याद नहीं है, जिसका मुझे नाम नहीं मालूम है, ही इज माई लीडर. ओके? सो लीडरशिप को आप पैसे वाले लोगों में मत ढूंढे. ओके? इट कैन बी एनीवेयर अमॉन्ग्स अस, कहीं भी हो सकता है. और किताबों में छुपा है, सीरत में छुपा है. ओके? कई ऐसे पैगंबर और सहाबा की स्टोरी है जो हम लोग पढ़े नहीं है.
इसलिए हमारे पास शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये हमारे लिए रोल मॉडल बन गए हैं, क्योंकि हमने सीरत नहीं पढ़ी है ना, राइट। सो पहले ये सब चीजों को पढ़े। आप जब ये चीजों को पढ़ते हो ना, कुरान में भी ऐसे कई सारे आयत हैं जो कि लाइफ चेंजिंग आयत हैं, राइट। आप अरबी में ना बोल के उसको हिंदी उर्दू में बोलिए, अपनी अपनी स्टेट लैंग्वेज में बोलिए, देखिए लोग कैसे ताली मारते हैं। आई प्रॉमिस यू। ओके, सो रीड, फर्स्ट रीड एंड एक्सपैंड योर नॉलेज होराइजन। देन ये थॉट जब आपके दिमाग में आते हैं, देन ये आपके जुबान से निकलते हैं। आपकी जबान से वही निकलेगा जो आपके भेजे में, वो भेजे में नहीं है तो निकलेगा कहां से? भेजे में कहां से जाएगा? पढ़ने से। ओके, सो प्लीज रीड एज मच एज पॉसिबल। ओके, ये एक उम्मत की बहुत बड़ी निशानी है कि उम्मत किताब में ज्यादा वक्त गुजारती है, होटल पे या चाय के होटलों पे ज्यादा वक्त गुजारती है। ओके, आई एम लीविंग यू विद दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वन, स्माइल, a curved line which makes everything straight. Smile and you go a mile, extra mile and mile after mile. Okay, स्माइल बहुत जरूरी है, ये आपका बहुत काम आसान करती है, बहुत बड़ी सुन्नत है भाई। ओके, सो प्लीज स्माइल। क्यों? व्हाई वी फील इट सो डिफिकल्ट टू स्माइल? बिकॉज हमको हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना होता है, राइट। थॉट्स को कंट्रोल करते हुए भी फिर भी आपको स्माइल पे रखना, इट्स अ वेरी बिग सुन्ना। ओके, इट्स अ वेरी बिग आर्ट, एंड ये हम सबको चाहिए कि हम लोग करें। ओके, सो नेक्स्ट वन, हाई कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म इन वर्क। आप जब भी कोई भी काम करते हो ना, बहुत दिल लगा के और अपने लेवल का करना चाहिए, अपने लेवल से भी ज्यादा का करना चाहिए। पहले तो हाई कॉन्फिडेंस कि आप जो कर रहे हैं वो सही। आप जब सही काम करते हो, नियत अच्छी है, तो आप अल्लाह को राजी करने के लिए काम कर रहे हो, तो फिर किस बात का डरना? गो एंड टॉक टू एनीबडी, जाओ, स्टार्ट द कन्वर्सेशन, फिर वहां पे आपका नॉलेज का हॉरिजॉन एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट बीइंग दैट लीडर। ओके, आपको ये करना है कि पहले वो कॉन्फिडेंस ला ले अपने अंदर। नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंथुसियाज्म। जो भी काम करते हो ना, बड़े जोश से, बड़े जोशो खरोश से, या अपने एंथुसियाज्म से करना चाहिए। यहाँ पे मुझे एक जोश टॉक करके, एक इंडिया में जैसे टेड टॉक आता है ना, इंडिया में जोश टॉक करके आता है, एक बम्मन ईरानी का एक जोश टॉक है, यू लिसन टू इट। ओके, गूगल कर लेना, यूट्यूब पे ढूंढ लेना, बम्मन ईरानी का एक जोश टॉक है। ही एक्चुअली एंटर्ड इनटू बॉलीवुड एट द एज ऑफ 35। उससे पहले वो फोटोग्राफी करता था, बट मैंने उससे एक सीख ली है। उसमें उसने क्या बोला है कि उसकी दादी ने उसको ये कहा है कि बेटा, अगर गली का मोची भी बनो तो नंबर 1 रहना, अगर गली का मोची भी बनो तो उसमें नंबर 1 रहना। सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस, कि मैं जो भी काम करता हूं ना, अगर मुझे वाव मिलना है तो ही मैं करूंगा। वाव माने तारीफ। ओके, तारीफ मिलना है तो ही मैं करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं तारीफ हासिल नहीं कर सकता या मुझे वो उसकी हक नहीं है उस टॉपिक के ऊपर बात करने का, मैं बात नहीं करता हूँ। ओके, और जब बात करता हूँ तो मैं ये एंश्योर करता हूँ कि पूरी कोशिश, मेरी जी जान डाल देता हूँ, मेरा वो एंथुसियाज्म डाल देता हूँ उसके अंदर कि मुझे वो तारीफ मिले। तो हर काम, आप जो भी काम करेंगे एज ए लीडर, जो भी काम करेंगे, विदाउट लीडर आप जो भी काम करेंगे, घर पे काम करेंगे, बाहर काम करेंगे, डू इट विद एंथुसियाज्म। ओके, नेक्स्ट वन, बी ए गुड लिसनर। ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ा बॉडी लैंग्वेज के बारे में, उसमें कई बार ये बोला गया है कि आप जब भी किसी को सुनते हो ना, पूरी बॉडी उनके तरफ पलटा लो, पूरा उनके तरफ पलट जाए। ओके, इतना मैंने देखा कि ये इतना क्यों इंपॉर्टेंस देते। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड इट। बाद में मुझे सीरत में एक जगह पढ़ने मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका था कि वो जिसको भी सुनना है उनको 2 मिनट रुका देते, और जब पूरा काम खत्म होता उनके तरफ पलट जाते और फिर बोलते हाँ बोलिए। ओके, तो ये एक सुन्नत है। तो यहाँ पे क्या होता है, यू आर ए 100% लिसनर, यू आर ए गुड लिसनर। आप जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि बात को समझने के लिए सुनते हो। ओके, सो दीज आर द क्वालिटीज जो आप एक एक करके कॉन्शियसली डेली डेवलप करते जाएंगे। आप लीडरशिप की एक दिन सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। ग्रेजुअली यू आर बिकमिंग ए लीडर, एंड इट इज नॉट अ वन टाइम थिंग। लीडरशिप इज अ जर्नी, यहाँ पे आना शायद एक बार में पॉसिबल हो जाए, बट यहाँ पे रहना, बरकरार रहना बहुत मुश्किल है। ओके, तो ये सब क्वालिटीज को आपको कंटिन्यू भी करना होगा। नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑप्टिमम। ये हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को अपना दुश्मन मान लेते हैं, राइट, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से। बट फॉर अस, वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड नाउ इट्स एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड वी शुड यूज द टेक्नोलॉजी फॉर अवर बेनिफिट, फॉर अवर एस। हमारे फायदे के लिए इसको यूज करना है हमको। राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग,
ये जूम की टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं एंड आई डोंट नो पैन इंडिया आप लोग कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, देखता हूँ सब लोग जाग रहे हैं क्या सो रहे हैं, या इंडिया के बाहर से भी। कैन यू प्लीज टाइप द लोकेशन, आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं? कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स आप कहाँ से हमको सुन रहे हैं, कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं? पटना बिहार, मुर्तजा साहब, जहीरुल फ्रॉम आसाम, वाओ वेरी गुड। देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का कमाल। अमरावती, कलकत्ता, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, रियाद, वाओ जम्मू, क्या बात है फरहान साहब। इकरामुद्दीन, जयपुर, रियाद, धुबरी, देखो भाई आसाम का ये मैंने नाम नहीं सुना, देखो आज धुबरी करके मुझे नई जगह का नाम भी पता चल गया। वहीद भाई फ्रॉम जिद्दा, हाँ माशाल्लाह, वहीद भाई हमारे गुलबर्गा से ही हैं। ओके, हावड़ा, वेरी गुड, थैंक यू जज़ाकुमुल्लाह खैर। ओके, थैंक, मुझे ये भी पता चल गया कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं अभी तक। ओके, सो टेक्नोलॉजी का यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इसको यूज करके, इसको टूल बना के हमको यूज करना है, इसके गुलाम ना बने, ओके, बल्कि इसको अपना हथियार बनाए। ओके, नेक्स्ट वन, बी ओपन फॉर क्रिएटिव इन योर अप्रोच। एक बार लीडर को ये चाहिए होता है कि पहले तो क्रिएटिव भी चाहिए और क्रिएटिव तरीके से कोई काम को करने आना चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मेरे साथ ये चैलेंज आया था, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था जहाँ पे 1000 एम्प्लॉइज थे। अफजल भाई प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योरसेल्फ, अफजल आलम। एक बार मैं एक कंपनी में काम कर रहा था जहाँ पे 1000 एम्प्लॉइज थे और एज ए HR टीम, इवन दो आई वाज इन ट्रेनिंग, एज ए HR टीम हमने क्या कर दिया, एक ऑप्शन पूरे एम्प्लॉइज को दे दिया, प्लीज सजेस्ट कि हम ये कंपनी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ओके, 1000 में से 400 लोगों ने लिखा। ओके, एंड हर आइडिया के पीछे कुछ ना कुछ खर्चा था कंपनी को। तो कंपनी ने पूरे लिस्ट को देख के बोला, अरे भाई इसमें तो हर चीज में खर्चा है, मुझे नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। फिर हमने क्या किया, एज ए HR टीम हमने क्या किया, इसको सवाल को थोड़ा सा तब्दील करके ये सवाल किया, कोई ऐसा आइडिया बताओ जो छोटा सा हो, जिसमें पैसा खर्च ना हो और लाइक यू नो कंपनी की तरक्की और या आपको यहाँ पे काम करने और अच्छा लगेगा। इस सवाल के ऊपर 400 नहीं बल्कि आपकी बार 600 लोगों ने जवाब दिया और 600 के 600 आइडिया जहाँ पे 1 रुपया खर्च नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे एक लीडर की तौर पे हमारे HR मैनेजर ने क्रिएटिव अप्रोच इख्तियार किया। नाउ दिस काइंड ऑफ स्मॉल a little bit of creative, little bit of out of the box thinking makes you a better leader, makes you get that recognition. Okay, शहर घाटी से गया मैं, आप कहां से है पता नहीं, कुछ अफजल आलम कुछ बोल रहे हैं शायद। ओके, द नेक्स्ट वन, कोलैबोरेट एंड विन द कॉम्पिटिटर्स। सी, ये एक बात हम लोग जान ले, एक्चुअली इंसान में कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है। ओके, एज ए लीडर, one of the learning which I want you all to take from this session is, please from now onwards don't call anybody as bad or good. सब अल्लाह के ही बनाए हुए हैं, सबके अंदर कुछ अच्छा या कुछ बुराइयां हैं। Now as a leader it is very important that you must understand कि आपके टीम में कौन क्या अच्छा करता है, किसके अंदर क्या बुराई है मैं इसको कैसे छुपाऊं, किसके अंदर क्या अच्छाई है मैं इसको कैसे ऊपर लाऊं, कैसे मैं एक टीम का प्रॉपर मिक्स क्रिएट करूं। This is one of the very essential quality of a leader. Okay, कि वो सबको वो appreciation, सबको वो space देता है, सबको वो weightage देता है टीम के अंदर। Okay, that is why he becomes that leader. Now not only here within the team, now the next level of leadership is you collaborate with your competitors also. कि आप competitors के साथ भी collaborate करके एक win-win situation create करते हैं, जहां पे humanity के लिए, जहां पे लाइक यू नो इंसानों के लिए, जहाँ पे कम्युनिटी के लिए भलाई हो। ओके, आज हमारी कम्युनिटी में सब में बड़ा प्रॉब्लम है, एक मीम ही दूसरे मीम की टांग खींचते रहता है, राइट? तो लीडर कहाँ से बनेंगे भाई? हमको ये चाहिए कि लाइक यू नो वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वी शुड गो टू द कॉम्पिटिटर एंड लाइक यू नो उसके साथ भी विन विन सिचुएशन क्रिएट करके लाओ। ओके, देन कपल ऑफ मोर थिंग्स, हैव योर रोल मॉडल, और एक 4-5 स्लाइड्स हैं। ओके, हैव योर रोल मॉडल। रोल मॉडल तो है, सबने लिख दिया शुरू में। ओके, बट कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं, किस एक्सटेंट तक फॉलो कर रहे हैं, राइट? आज हमको हमारे ऊपर, हमारे कम्युनिटी के ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आधी कम्युनिटी कुछ करती है, आधी कम्युनिटी कुछ नहीं करती है। तो लोगों को बहाना बन गया ना, अरे वो नहीं कर रहा है तुम क्यों कर रहे हो, राइट? सो लाइक दिस मेनी थिंग्स विल हैपन, बट इफ यू फॉलो वन रोल मॉडल टू द कोर, सब लोग वही चीज करेंगे। ओके, एंड इन लीडरशिप दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपका एक रोल मॉडल होना चाहिए, देन यू बिकम लाइक दैट। ये वही विजनरी की बात कर रहा हूं मैं अगेन, कि आप जो देखते हो वो होता है ना, तो देखना है आपको, वो विजनरी लीडर को देखना है। नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तंदुरुस्ती 1000 नियामत, राइट? हम सब लोग जानते हैं ना, तंदुरुस्ती 1000 नियामत। ओके, हेल्थ इज वेल्थ,
एंड और एक हदीस भी है जो कहती है लाइक वक्त और हेल्थ, ओके, वक्त और सेहत दो ऐसे नियामत है जो हम लोग कई बार इग्नोर कर जाते हैं, राइट फ्रेंड्स। मैं ट्रेनर बनने का वन ऑफ द रीजन फॉर मी टू बिकम ट्रेनर इज, मेरा ये ख्वाब है कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक काम करता रहूं, ओके, आखिरी दिन तक काम करता रहूं, मुझे कोई रिटायरमेंट नहीं चाहिए। एंड टिल देन इंशाल्लाह ताला आई वांट टू बी फिट। मैं लोगों से कई बार कई चीज खाने के लिए ऑफर करते हैं तो मैं मना करता हूँ, सॉरी आई कांट ईट। मैं बोलता हूँ भाई मेरी माय वॉइस इज माय मनी, माय वॉइस इज माय पैशन, माय वॉइस इज माय प्रोफेशन, ओके। मैं गला खराब नहीं कर सकता। कई बार अगले दिन ट्रेनिंग हो तो मैं एक रात पहले मीठा नहीं खाता, स्वीट्स मुझे बहुत पसंद है, आई वोंट ईट, ओके, बिकॉज बी यूथफुल, बी फिट, बी हेल्थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लीडर, ओके। बी प्रोएक्टिव एंड डोंट रन अंडर प्रेशर, डोंट रिएक्ट अंडर प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लीडर की। प्लीज यहाँ पे 1 मिनट देता हूं मैं। एक तो लीडर को प्रोएक्टिव होना चाहिए, यानी कि वक्त से पहले चीजों को सेंस कर ले और आगे बढ़े। यहाँ पे एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किस्सा सुनाता हूं मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे एक बार ये हुआ कि जोर से बिजली कड़की और रात का टाइम था, बिजली कड़की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा जो है ना वो अपनी लाइक जो बंधी हुई रस्सी रहती है उसको तोड़ के भाग गया। कई सारे साहबा बाहर आए, अपने अपने घरों से देखा कि घोड़ा भाग गया, तो सब लोगों को लगा कि भाई उधर भागो इधर भागो, घोड़े को पकड़ के लाओ, और बोले रहे आवाज मत करो, आवाज मत करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, ओके। जब सब लोग ऐसे देख रहे तो थोड़ी देर के बाद में नजर आया कि कोई एक बंदा जो है घोड़े को साथ में अपने पकड़ के लेकर आ रहा है। जब करीब आए तो देखा कि वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो लोग परेशान हो गए, आप हुजूर आप? बोले कि हाँ, जैसे मेरे घोड़े की आवाज थी, जैसे मुझे पता चला कि घोड़ा भाग गया तो मैं जाके इसको लेकर आया, राइट। एक प्रोएक्टिव अप्रोच आप देखें कैसा है। He is a real leader. He is a real leader. ओके, तो पहले तो प्रोएक्टिव। सेकंड वन, यहाँ पे और एक चीज जो बताई गई है कि डोंट रिएक्ट अंडर प्रेशर। एक बार ऐसा होता है कि एज ए लीडर कई सारे लीडर अपनी लीडरशिप खो बैठते हैं जब वो किसी एक सिली पॉइंट के ऊपर प्रेशर के अंदर अनवांटेडली रिएक्ट कर देते हैं, ओके, अनप्लेजेंट रिएक्शन दे देते हैं, और उसके बाद उनकी इज्जत गिरते जाती है एंड they are no more a leader, they are no more accepted as a leader, right? तो रिएक्शन में, प्रेशर में रिएक्ट नहीं करना एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है। ये डेवलप करना शुरू करें। हम में से कई लोग ऐसे हैं, अरे मैंने उसको जवाब दे दिया, मैंने उसको सिखा दिया, बहुत अपनी तारीफ कर रहा था, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, राइट। हमको वो लाइक एक अच्छा ये लगता है तारीफ हासिल करने का मौका। नहीं, प्लीज यहाँ की तारीफ हासिल मत करें, आखिरत की तारीफ हासिल करें, ओके। लीव द आर्ग्यूमेंट, बट डोंट रिएक्ट अंडर प्रेशर। प्रेशर में गुड बैड किसी भी तरीके से वर्बली तो बिल्कुल रिएक्ट न करें। हाँ, देयर आर सर्टेन टाइम्स जहाँ पे प्रेशर में हमको इमीडिएट एक्शन लेना है, नेचुरल कैलामिटी आ गई है, जलजला आ गया है, ओके, एट दैट टाइम यस वी हैव टू रिएक्ट, ओके, बट इन अ पॉजिटिव वे, बट डोंट रिएक्ट इन अ नेगेटिव वे जहाँ पे एज ए लीडर यू विल लूज योर क्रेडिबिलिटी, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, एक ऑलिवर वेंडल होम्स का एक इंग्लिश कोट है, उसको रिपीट करता हूं यहाँ पे, उसको बोलता हूं, ओके। ही सेज दैट व्हाट लाइज इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, एंड व्हाट लाइज बिहाइंड यू आर टाइनी मैटर्स व्हेन कंपेयर्ड विद व्हाट लाइज विद इन यू। आपके आगे क्या है, आपके पीछे क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है कि आपके अंदर क्या है, आप अपने अंदर क्या समुंदर, क्या तूफान, क्या थॉट प्रोसेस, व्हाट आइडियाज, व्हाट ग्रेट थिंग्स यू आर होल्डिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। So that is what makes you. Our leadership is inside out, outside in नहीं है। आप लोगों को देखकर लीडर बनते हो, मगर लोगों को अंदर से लीडरशिप बताना है, बात करना है, बोलना है, मोटिवेट करना है, लीड करना है, परसुएड करना है, इंस्पायर करना है, इसके लिए इनसाइड आउट चाहिए, ओके। लीडरशिप मैटर्स में इनसाइड बहुत कुछ होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, आई थिंक द स्लाइड इटसेल्फ इज टेलिंग अ लॉट, ओके। मैंने अपना फॉर्मेट भी चेंज कर दिया है। व्हाई? Never neglect your family, however your parents are, however your siblings are, कैसे भी रहो, right? Because this bonding, this relationship is what Allah has created. दोस्त हम बनाते हैं, कलीग्स हम बनाते हैं, जब चाहे तोड़ लो, right? But this relationships is what Allah subhanahu wa ta'ala has created, okay? So and you have to give that equal importance. कॉर्पोरेट में, लीडरशिप के दौड़ में, मैनेजर के दौड़ में इतना मत चले जाओ कि आप अपनी फैमिली के लीडर होना भूल जाओ, ओके। कहां भी जाओ पहले आपको अपनी फैमिली का लीडर होना होगा, देन यू कैन बी अ लीडर फॉर एनीबॉडी आउटसाइड, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हमेशा लास्ट को सोचकर, आखिरत को सोचकर शुरू करना है, ओके।
सो कपल ऑफ लीडरशिप ट्रेट्स लास्ट में आपको बोल दूं कि लीडर इज नॉट अ लीडर हु विल क्रिएट फॉलोअर्स. नहीं, लीडर्स वो नहीं होते जो फॉलोअर्स क्रिएट करते हैं. लीडर वो होते हैं जो लीडर होते हैं, जो लीडर्स को क्रिएट करते हैं. एक डेफिनेशन जो मेरे दिल के बहुत करीब है लीडरशिप का, लेट मी पुट इट अक्रॉस टू यू हियर, व्हिच सेज दैट यू आर नॉट अ लीडर until you have produced another leader who can produce another leader. ऑर्गेनाइजेशन में आज ये बड़ा चैलेंज बना हुआ है. कई हमारे उलेमा, कई हमारे बास लीडर्स ऐसे हैं जो अपनी तालीम लोगों तक पूरी तालीम नहीं देना चाह रहे, बोल रहे कि मैं आखिरी एक पैतरा बचा के रखूंगा, ओके, क्योंकि मेरा फॉलो मेरे से आगे ना निकल जाए. नहीं, ये लीडरशिप का डेफिनेशन नहीं है. लीडर को अपने टैलेंट पे, अपने सलाहियत पे, अपने इस चीज के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो दूसरे लीडर को क्रिएट करता है जो दूसरे लीडर को क्रिएट करे. जब आपके नीचे वाला लीडर दूसरा लीडर क्रिएट करता है ना, तब जाके आप अपने आप को लीडर बुला लें. यू क्लेम योरसेल्फ लीडर ऑन दैट डे, जब आपके नीचे बना हुआ लीडर जाके दूसरे लीडर को क्रिएट करता है. ओके, सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअल लीडरशिप. ओके, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी है, आई थिंक एवरीबडी कैन रीड इट. इट क्लियरली सेज दैट knowing is knowing, doing is doing. Knowing and doing are two different things. हम में से कई लोग जानते हैं बट करते नहीं है. ओके, आज की डेट में नॉलेजेबल वो नहीं है जो नॉलेज हासिल नहीं किया. आज की डेट में मेरे हिसाब से नॉलेजेबल वो है जो अपनी नॉलेज पे एक्ट कर सकता है, जो अपने नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसलेट कर सकता है. So throughout this workshop series from AMP, I think 8 workshops you are going to have. Now from this 8 workshop, what all learning you have, and if you are sitting now today in this session without a paper and pen, you are wasting time. अगर आपके सामने पेपर और पेन है और आपने यहाँ पे लिखा है एक एक पॉइंट्स या जो पॉइंट्स आपको नए लगे, you are a learner, you will grow. I promise you will grow. You will become leader one other day, and one other day you will apply it also. अगर आप यहाँ पे सिर्फ हाथ बन के सुन रहे हो ना, जैसे ही ये चैट क्लोज हो जाएगा, you will forget it all. You will forget it all. Okay? So for that reason, please apply your knowledge. And for application of knowledge, एक बात बोलता चलूं, same efforts, same results. If you want different results, change your actions now. आपको अभी अपने actions change करने होंगे. आप रोज रोज जो करते हैं वो change करना होगा, तभी जाके आपके लाइफ के अंदर changes आएंगे, तभी जाके आप आगे जाके इंशाल्लाह ताला लीडर बनेंगे. अगर आप आज अभी से ये तब्दीली नहीं लाएंगे, ऐसे 1000 सेशन हो जाएंगे आप सुन के, जैसे ही हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह जैसी अकामत होती है, उठ के लिए नमाज के लिए ठहर जाएंगे, जैसे हम लोग हर जुम्मा के खुतबे के बाद करते हैं, राइट? सो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू हैव द करेज टू बिगिन, यू हैव द करेज टू सक्सीड. इवन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप. एक पहला कदम, अल्लाह ताला बोलता है एक कदम मेरे तरफ बढ़ाओ, मैं दौड़ता आऊंगा तुम्हारे तरफ, राइट? So for that reason, my dear friends, please take that step. So with this, I would end, and I'll leave with a question. Again, a question to you: are you ready to become a leader? Right, Aisha? We are open for question and answer now. Yes, some of them have started answering. Are you ready to become a leader? MashaAllah. Samia, Hafizullah, Mahavish, Mahavish, Muhammad Ibrahim, Amish, Imran, Farhan. भाई ये सब तो माशाल्लाह लीडर बन रहे हैं. अतीक माशाल्लाह, जहीरुल हसन, अयाज माशाल्लाह माशाल्लाह, नोवेद, ओके, खलंदर आजाद माशाल्लाह माशाल्लाह. और कौन है भाई? Mashallah, Zamiruddin Saab, this really makes us feel like we will definitely become a leader if we follow all your suggestions and all amazing the way you have taken this entire series. जिस तरह से आपने सारे चीज़ों को बयान किया है कि एक लीडर के क्या क्वालिटीज होते हैं, अगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से अगर आपके बताए हुए सारे चीज़ों पे अगर हम हमारे इंटर्न्स या मैं खुद भी हम सब इस पे अमल करें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली हम एक अच्छे बहुत इम्पैक्टफुल लीडर बन सकते हैं अपने कम्युनिटी के लिए, ना सिर्फ कम्युनिटी के लिए बल्कि ऑल ह्यूमैनिटी के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. आई जस्ट कांट thank you enough for such an amazing words you have put here, such an amazing presentation that you have presented with so much knowledge and so much information related to the leadership and how to become a leader, a clear guidance towards that. That's really amazing. Now I would like to open the question and answer sessions for
from all our interns. You can unmute yourself and you can start asking, or you raise a hand. We will ask you to unmute. That would be better. That would be Yeah, better. Please raise your hands, and Furqan bhai inshallah will unmute you. Yeah. जो भी आपके सवाल हैं आप रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए, फिर आपको पूछने का मौका मिलेगा. No question is a silly question. No question is a stupid question. अगर आपको आंसर पता भी है, अगर आपको लगता है कि मैंने इस टॉपिक में यहाँ पे सेशन में अगर वो टॉपिक को टच नहीं किया है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट लाइक अ क्वेश्चन. ओके, इससे दूसरों का भला हो सकता है. और कोई क्वेश्चन सिली है करके ये मत सोचिए आप लोग. 1 मिनट के लिए स्टूपिड फील होना अच्छा है ना, बल्कि जिंदगी तमाम स्टूपिड फील करना. सो प्लीज गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चन. लीडरशिप का पहला अनदर क्वालिटी इज टू टेक इनिशिएटिव. अगर आपके पास कुछ भी डाउट है तो टेक इनिशिएटिव टू गेट इट क्लैरिफाइड. नथिंग रॉन्ग इन इट. या वी हैव मोहम्मद इमरान. मोहम्मद इमरान, प्लीज गो अहेड. मोहम्मद इमरान शायद शर्मा रहे हैं, वो हैंड रेस करके फिर हैंड डाउन कर दिए. नहीं पूछेंगे इंशाल्लाह. He will ask the question. हाँ, इंशाल्लाह. Till then we can take somebody else's. Yeah, till then we can take Amish Murtaza's question. Amish, please go ahead. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam wa rahmatullahi. So my question is, a leader should first work upon himself. Like he should have a very efficient time management skills. This is something which I believe. How much do you agree with my point? And what should one can do to be better at time management? Time management altogether is a very big topic. Inshallah, we'll take a 1-hour session on that. Okay, but I do agree. Yes, time management is a very vital quality of a leader, and वो उनको चाहिए कि like वो follow करें. And in fact, ये leadership की जो qualities की अगर बात करें ना, हमारा इस्लाम हमको बहुत gradually हमको like consistently हमको leader बनाता है. एंड उसमें जब अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो जो हमारे 5 वक्त नमाज है ना, सो नमाज इज द बेस्ट टूल फॉर टाइम मैनेजमेंट. यहाँ पे हम लोग लाइक बड़ी आसानी से टाइम को लाइक कंट्रोल कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट के अंदर पहली चीज ये है कि हम लोग ये जान ले कि हमारे क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो हमको करने हैं, एंड उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट इज टू प्रायोरिटाइज कि कौन सी चीज कब करना चाहिए. हम लोगों के पास प्रायोरिटी नहीं होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज सामने आती है उसको करते जाते हैं. So that is what I call the day runs you. If you want to run the day, you must have a list of your to-dos. You must have a priority of high, medium, low. High वो जो करना ही करना है, medium उसके बाद करना है, low वो है जो टाइम मिलेगा तो करूंगा वरना ना करूंगा. कौन सा भी काम करने से पहले 2 चीज देखना है. आखिरत के एतबार से क्या अल्लाह राजी होगा, ओके, दुनिया भी एतबार से ये देखे कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका टाइम इंपॉर्टेंस क्या है. Is it result of this activity which is important for me, or is it the time which is important in which I have to do this activity? Then you will gradually start getting control of the time. Other things I can discuss only in time management, but for now I can only tell this. Yes, no doubt. Thanks for reminding this. Time management is a very vital feature, very vital quality of a leader. Okay, Furqan bhai, next question please. Yeah, any other raised hands? I cannot see any raised hands yet. I think Samia has asked a question. Furqan, can I read it, please? Okay. जी, सामिया का क्वेश्चन ये था कि how much you think education plays a role in leadership, a proper leadership. She's asking about the importance of education. My question to you here back, Samia. मैं आपको सवाल कर रहा हूँ वापस. What is education? Okay. Why I'll tell. आप आंसर नहीं करेंगे, टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ. Because education is not confined to the classroom or to the degree or the highest degree what you are achieving. Okay, डिग्री तक एजुकेशन को महदूद ना रखें. एजुकेशन तो हमको कुरान से भी मिल रहा है, एजुकेशन तो हमको सीरत से भी मिल रहा है, एजुकेशन तो हमको हदीस से भी मिल रहा है, एजुकेशन तो हमको हमारे सहाबा से मिल रहा है, एजुकेशन तो हमको लाइक अराउंड हमारे लोग जो हैं उनसे भी मिल रहा है. सो एजुकेशन डोंट बी कन्फाइंड देयर. एक तो ये चाहिए कि हम लोगों को जितना हो सके उतना ज्यादा एजुकेशन का लेवल हासिल करना चाहिए. ओके, अगर आप डिग्री करते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन जाते हो तो एमफिल तक जाए, एमफिल करने की ताकत है तो पीएचडी तक जाए. दैट इज फर्स्ट थिंग आई वुड टेल. as much education from the formal classroom education, please acquire it. ये तो फॉर्मल क्लासरूम कन्वेंशनल एजुकेशन हो गई.
नाउ द एरा इज ऑफ अ नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन, जो हम लोग अपने आप को अपग्रेड करने के लिए करते हैं. You believe it or not, during this pandemic, I have registered for more than 18 online courses. Okay, I am not exaggerating. I am telling the real fact. In this pandemic, in this last 2 years, I have registered for more than 18 online courses. Only 6 I have completed. I am proud of it because at least 6 I have completed. At least 6 I have joined. I have completed. मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है, राइट? तो ये एजुकेशन हमारा कंटिन्यूस चलते जाने वाला है. Because if you're telling education कहाँ तक हासिल करना चाहिए, education का क्या रोल है, that means education is stopping somewhere. What I'm trying to tell is education, please do not stop. Learning, please do not stop. Let it be a continuous process. Let it be a continuous process. Leader education plays a very vital role. And आपको आज जो मिला है ये leadership का education है कि एक leader कैसे होता है. कल आप किसी और को लीडर बनते हुए लीडरशिप का रोल निभाते हुए देखेंगे, आप उनसे भी सीखेंगे. That is also education. Again about leadership. Okay, so for this reason education को leadership को confine करना जरूरी नहीं है. I call my mom is a very good leader for me. She's hardly 5th pass. On the paper she's 8th pass. She's my leader. So how do you limit it to, like, you're not limiting, okay, but how do we limit it to that, right? So it is very important, like, we should sky is the limit. हर आखिरी दिन तक पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए. Yes sir, I do understood. Sir, can you suggest some courses if possible? कोर्सेस के लिए तो बहुत सारे कोर्सेस है करने के लिए. आपको जो लगता है ना, आपका जो नीड है नेक्स्ट, आपको जो एरिया में नेक्स्ट काम करना है ना, वो कोर्स में जंप हो जाए. ओके, एंड दिस इज नॉट द लास्ट कोर्स, राइट? एक कोर्स तो पढ़ने वाले नहीं हो, बहुत सारे कोर्स पढ़ने वाले हो. सो स्टार्ट विद एनी कोर्स, ओके, बट यू कैन स्टार्ट विद एनी कोर्स ऑन लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ओके, या एनीथिंग व्हाटएवर यू फील यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ, बिकॉज आई कैन नॉट गाइड फ्रॉम हियर. बिकॉज वो बुक आपको या वो कोर्स आपको सुटेबल होगा जो आपको इस वक्त फिलहाल गैप है, विच यू आर इन द मोस्ट नीड ऑफ. ओके, बिफोर वी मूव फर्दर, एक छोटा सा यहाँ पे फीडबैक फॉर्म, फीडबैक का लिंक हमारे आयशा मैडम शेयर कर रहे हैं. प्लीज डू गिव फीडबैक. दिस फीडबैक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज आप इसको कितना अमल में लाते हो आज के सेशन को. ओके, over to back to Furqan bhai for the next question. There is a question in the chat box from Mohammad Imran. Sir, does appearance of a person has any effects on leadership? Is what his question is. Yes, it is. In fact, in the 90% it is very impactful. Only 10% it does not impact. When before your appearance, your leadership has already reached the person. अगर आपकी लीडरशिप अगर किसी को ऑलरेडी पहुंच गई है ना, वो आपको एज ए लीडर पहले से गायबाना आपको वो अपना लीडर एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसके बाद में आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपके वर्ड्स, आपकी सारी क्वालिटीज की वजह से वो आपको लीडर मान लेते हैं ना. वो हो सकता है जब जाके वो आपके ड्रेसिंग को नजरअंदाज कर दे, हो सकता है. ओके, बट इनिशियली यू हैव टू, लाइक फॉर मी एग्जांपल, आप किसी भी यहाँ पे पुराने AMP के मेंबर को पूछ लें, वो लोग बोलेंगे कि हमेशा उन्होंने मुझे टाई में देखा है. टुडे आई एम नॉट इन टाई. आई विल टेल यू द रीजन. बिकॉज अभी मैंने मेरे टीम के इंसिस्टिंग पे मैंने ये किया है कि अभी मैं सैटरडेज को मैं थोड़ा सा सेमी फॉर्मल्स में आऊंगा, सो मैं टाई या जैकेट नहीं पहनूंगा. अदरवाइज इन माय ओन ऑफिस डेली आई कम इन टाई. मैं क्लाइंट के पास जाता हूं तो भी टाई. मैं संडेज को ट्रेनिंग करता हूं, संडे को मेरा करियर काउंसलिंग सेशन होता है, टाई में, जैकेट में, सूट में रहने की कोशिश करता हूं. व्हाई? ऑल दिस थिंग्स डज मैटर्स. ओके, एंड अल्लाह ताला जमील और जमाल है और जमाल जमील को पसंद करता है. सो वी हैव टू लुक outside beautiful. Okay, I hope this answers the question. जी शुक्रिया. सैयद फरहान का एक कुछ सवाल है. सैयद फरहान, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. Farhan, can you unmute yourself? He has put something here. Steps to ensure that we make a right decision as a leader. Right decision as a leader, istikhara पढ़े. Okay, yes, no doubt that is the most important thing. See, very important is number 1, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए. आप अपने लिए, अपने टीम के लिए अच्छी सोच रखते हो. दूसरा, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर काम करने से पहले ये सोचे कि आप इससे अल्लाह को राजी कर रहे हैं या नहीं, अल्लाह इससे राजी होगा या नहीं. ओके, नेक्स्ट वन, एक लीडर को चाहिए कि अपना वो नॉलेज होराइजन जितना हो सके उतना एक्सपैंडेड रखे, जितना हो सके अपना इंफॉर्मेशन अपने पास रखे. इंफॉर्मेशन के वजह से ही लोग डिसीजन ले पाते हैं. कई सारे लोग इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, डिसीजन नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. तो जब आपके पास जब इंफॉर्मेशन हो तो आपका डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है. तो एज ए लीडर हमको पहले ये कॉन्शियस एक्सरसाइज करना चाहिए कि
हर जगह की इंफॉर्मेशन रखें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लाइक यू नो गीबत करें या किसी की चापलूसी करें या किसी के पीछे पीछे लोगों के बारे में सुने, बट कीप एन लाइक यू नो आई ओपन एज टू हु इज डूइंग व्हाट। ओके, तो ये आपका डिसीजन मेकिंग को इजी करता है। सेकंड वन, जब भी डिसीजन लेते हैं ना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप मास को देखें, थिंक फॉर ए बिगर गुड फॉर मास। ओके, मेजोरिटी के लिए क्या अच्छा हो सकता है वो करना है, एंड अल्लाह ताला से मदद मांगे कि वो आपको हक, यानी कि हक वाला जो डिसीजन होता है ना, वो यूजुअली किसी ना किसी को हार्म करता है। तो अल्लाह आपको मदद करे कि वो आप किसी के लिए हार्मफुल होगा बट मेजोरिटी के लिए वो यूजफुल होगा, तो वो डिसीजन लेने में अल्लाह हमको हेल्प करे। ओके, सो दैट इज व्हाट आई कैन सजेस्ट फॉर नाउ। देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच वी कैन डिस्कस, बट फॉर टाइम वी कैन नॉट। जी, और कोई सवाल है किसी का, या हम रैप अप कर दें? जो भी क्वेश्चन है अभी पूछ लीजिए, अच्छा मौका है आपको। I think Ayaz is asking a question, Furqan bhai. जी Sir, please repeat. be productive, don't preach under pressure. Be proactive है साहब। proactive मतलब आप वक्त से पहले काम करना उसके ऊपर। ओके अयाज भाई, proactive मतलब एक होता है proactive, एक होता है reactive। proactive वो होता है जो हालात आने से पहले हालात का जायजा लेकर अपने आप को हालात के लिए तैयार कर ले, उसे हम लोग बोलेंगे proactive। तो एक लीडर को चाहिए कि वो proactive रहे, ना बल्कि रिएक्टिव, कोई चीज आने के बाद में आप उसको रिएक्शन करते रहे। जैसे हमारी कौम के साथ आज हो रहा है, एक के पीछे एक एक चीज फेंकी जा रही है, हम लोग खाली रिएक्ट करने में मसरूफ है। वी आर नॉट प्रोएक्टिव, हम लोग प्रोएक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं कि हमको आगे कहाँ जाना है। ओके, सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग, प्रोएक्टिव। सेकंड वन, डोंट रिएक्ट अंडर प्रेशर, मींस आप प्रेशर के अंदर रिएक्ट यानी कि जवाब ना दें या डिसीजन ना लें। जब भी आप गुस्से में हो, प्रेशर में हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, वहां पे डिसीजन लेना, वहां पे कोई चीज को रिएक्ट करना, ये अक्लमंदी नहीं है। Okay, so that is what the meaning of that point is. Okay, I hope this clarifies. I asked. Yes, Furqan bhai, any other question? I think we don't have any other question. अगर कोई और question है तो please पूछ लीजिए, otherwise we will wrap up and I'll hand over back to sir. Leadership से कोई डरता है, अगर ये मुझसे आगे बढ़ गया तो ये खौफ होता है आजकल। हाँ, मैंने बोला ना सर, लीडरशिप का ट्रू डेफिनेशन वही है जहाँ पे आप एक ऐसे लीडर बन जाओ जो आप दूसरे लीडर्स को क्रिएट किए हो, दूसरे लीडर्स तीसरे लाइन के लीडर्स को क्रिएट करें, देन यू आर ए रियल लीडर। अगर आपने एक दो फॉलोअर्स को क्रिएट कर लिया है, दो लोग आपके पीछे आपकी पानी की बोतल पकड़ के फिर रहे हैं, एक कोई आपके लिए दरवाजा खोल रहा है, यू आर नॉट अ लीडर, यू आर नॉट अ लीडर। ओके, आप एक लीडर को क्रिएट करें जिसके पास ये काबिलियत है कि वो और दूसरे लीडर को क्रिएट कर सके। ओके, देन यू आर ए ट्रू लीडर, तब जाके आप लीडर बनेंगे। हमें से कितने लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, राइट? हमारे पास लीडर की सीरीज चले आ रही है, उसके वजह से आज हम लोग अपने आप को लीडर बोल रहे हैं, राइट? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लीडर थे जिन्होंने जनरेशंस ऑफ लीडर क्रिएट किया है, लीडर आफ्टर लीडर आफ्टर लीडर आफ्टर लीडर आफ्टर लीडर। ओके, तो वो है लीडर। तो प्लीज ये अगर हम में से कोई भी ये करेगा कि वो ये सोच करके मेरे नीचे वाला मेरे से आगे निकल जाएगा, मैं उसको नहीं सिखाऊंगा, आई एम नॉट अ लीडर। ओके, आई एम नॉट अ लीडर। Yes, please. Sir, I have a question regarding ETP feedback form. Yes, please. इसमें लास्ट में हमारा नेम ऑफ द कोर्स में हमें अपना प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के बारे में लिखना है, और या फिर अभी जो हमने सेशन किया उसका लिखना है? मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा इसमें। एक्चुअली तो उसमें डिग्री का ही रहता है, जो भी डिग्री वो कर रहे हैं। अच्छा, ओके, या किए हैं उसके ऊपर रहता है। बट अगर यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग डेट के हिसाब से ये मान लेते हैं कि ये ट्रेनिंग सेशन ये किसका था, ओके, उसके हिसाब से हम लोग यूजुअली ले लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू। अदरवाइज दे कैन मेंशन आल्सो, आप लोग वो लोग लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं। जी, मेरे ख्याल से और कोई सवाल अभी नहीं है, तो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर बैक टू आयशा मैडम टू कंक्लूड विद द दुआ। Thank you so much, Furqan sir. And I'm really happy that this session was delivered by Zamir sir, because I got to learn so many things about leadership. And I'll request my attendees and my participants that it will just take few seconds after this session to give the feedback. And your feedbacks are really, really very important for us. So just take out few seconds and give the feedback after the session. Jazakallahu khair.